अस्तु। पूर्वतनकक्षायां कृवि धातुपर्यन्तं पठितवन्तः अस्माभिः। अद्य ग्लै हर्ष क्षयति अ, धातुं ग्लै हर्ष क्षये अम, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि ग्लानीति शब्दः ग्लै धातोः आगच्छति। ग्लानीति शब्दः ग्लै धातोः आगच्छति। ग्लै हर्ष क्षये ग्लै तिप् शप् ऐ आय् ग्लायति ग्लायति इति रूपम्। अनन्तरं विमातानाम् आरामान्त पाठो शिवे आम्, यर्हि अशिव प्रत्ययः अग्रे पररूपेण वर्तते तर्हि चतुर्व्यूहान्त धातुः आरामान्त धातुः वत् परिवर्तते। When the Vishaya is a non-Shiva pratyay, when a non-Shiva pratyay follows, then dhatus ending in Chaturvyuha. What are the Chaturvyuhas? A, I, O, Chaturvyuha. So those dhatus ending with A, I, O, they become dhatus ending with original A, which means A, I, O gets replaced by Arama. So when a non-Shiva pratyay is following, so Glai plus Te, so Yak is applied and Yak is non-Shiva. So I becomes A by this rule Chaturvyanta Nama Ramanta Patho Shive. And then we get Glayate. Glayate iti rupam प्राप्यते अस्माभिः। ग्लै धातु दिप् भूतेषु परपदस्य दिप् प्रत्ययः तर्हि धातु पूर्वमत् सिर्भूतेषे तर्हि किं सूत्रम् चतुश्शतं सूत्रम् यम रम नमा रामान्तेभ्यः सुलिटौ सौ परपते यम रम नमा रामान्तेभ्यः सुलिटौ सौ परपते आरामान्तेभ्यः. So after arama aramanta dhatu also it when parapada pratyay is following. So Okay. Yam ram napad dhatu. so because glai has become gla by this rule, so it has become aramanta now. So on basis of that we apply yama rama nama ramanta so it also parapade so suk and it, and then ultimately we get a glassy suk kaid kidagmandi and itah silopa iti dashabda rekatmake then Harikamalam Vavirame. What is it? Vishnu Daso? Yeah. So aglasit. Vishnu Dasasya Harikamalam Vavirame. Aglasit. Similarly, aglasishtam, aglasishuhu, ityadi. Aglasi, aglasishtam, aglasishta, and so on. Then Ato Yugine Drising Kriticha. So these rules are quite important. Whatever we so yuk is inserted after arama when in or nrsinga pratyay follows. Glai, the glai becomes gla, chaturvyantanam aramanta patho, ashive, ashiva. Then dhatu purvamat, inasto, no, in bhuteshate bhava karmano.
And then we apply this Ata Yogini Nrsimha Kriti Cha and its following. So we insert yuk after gla before in and in astohara, so we get aglai, aglai. That's Bhutesha Atmapada Karmani 1-1. Aglai. प्रभु जी, Pritchett. प्रभु जी, सिरभूतेशे नहीं आना था इसमें? सर्वभूतेशे मतलब सिरभूतेशे। ना ना दिस इज त भूतेश आत्मवद उसमें सी तो हम लगाते नहीं है ना इन आ जाता 1.1 में है इन भूतेश दे भाव कर्मण इन भूतेष्ते भाव तो कर्मणः। उसमें तो सी आता ही नहीं है सी फिर बाद में आता है आताम से मतलब आरामाण नल औ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आफ्टर आराम नल इज रिप्लेस्ड बाय औ ग्लई becomes gla null becomes au reduplication and narade what's that narade no narade vishnu janan what is that sutra tatkim sutra नर विष्णु जना हाँ नर विष्णु जनानामादि शिष्यते नर विष्णु जनानामादि शिष्यते so gla has two vishnu janas ga and la so when we do nara when we do reduplication so which one to keep so nara vishnu jananamadi शिष्यते we keep the first vishnu jana for the nara so that's why ga then ka varga narasya cha vargah narade ramasya no narasya vamanah and jaglav odvay au jaglav. Similarly, if you see any form like Yayo, Jagau, uh, uh, Shankham Dadhamau Pratapavan, 1-1, chapter 1, Bhagavad Gita. Shankham Dadhamau Pratapavan, Dadmau. So those all au forms, they are actually this one. दद्मौ। ओके। Dadmau. प्रभु जी, Shankham Dadhamau Pratapavan. इव ययौ भागवते Yayo went. बाय Yayo iti ya दिस praptam. Kim? बाय दिस सूत्र ना? Amam. Yayo, Jagau, Dadmau. This rule is very much used. प्रभु जी, लाइक ययौ, इसका धातु क्या है वैसे? या या। आरामांत या एंड जगाऊ का क्या है? गई शब्द गायति गई शब्द और ये आरामंत नहीं है? गई चतुर्व्यूहांता नाम आरामांत पाठो शिवे उससे आरामांत बन जाएगा क्योंकि वो चतुर्व्यूह है ना ओके, अच्छा, ठीक है। तो गई का का बन गया फिर उसका फिर वो नियम लग के जगह हो जाएगा प्रभु जी, व्हेन द विशेष नॉन शिव प्रत्यय मींस इन राम धातुकास। हाँ राम धातुकों में भी और कृष्ण धातुकों में भी जहाँ पे शिव प्रत्यय बाद में नहीं है जैसे कर्मणि में होते। शिव नहीं कर्मणि में अच्युत वगैरह में भी कर्मणि में शिव प्रत्यय कहाँ आता है हाँ, यक नहीं आता है मतलब ना जैसे तो राम धातु की है। प्रभु जस्ट एक भगवान। जगलव अनंतरम आराम हरः कंसारे सर्वेश्वर रामधातुके usage आराम is deleted when it us or kansari ram dhatu ka beginning with the sarveshwara follows so glai atus so becomes gla and by this rule we delete a because we have a ram dhatu ka following which begins with the sarveshwara and it's a kansari pratyaya as well by asanyoga dalita dokshija kapila so by this rule we delete a आराम हरः कंसारी सर्वेश्वरे राम धातुके इति usage then reduplication and everything you get jaglatu प्रभु जी, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। one second yes
प्रभु जी नहीं पता लगे, एक प्रभु जी दोबारा बता देंगे? हाँ तो अतुस जो है वो कंसारी प्रत्यय है। असंयोगा दलित यस। दोक्षज कपिल, तो कंसारी है। अब यहाँ पर नियम बता रहे हैं कि अगर धातु है जिसके अंत में आराम है, और अगर हम्म। उसके बाद में है, उस है, या कंसारी राम धातु को है जो सर्वेश्वर जिसके आदि में है, तो वो आराम का हर हो जाएगा। ओके। तो ला में जो आ है उसका हर हो जाएगा, क्योंकि अतुस राम धातु का है, कंसारी है जिसमें आदि में सर्वेश्वर है। हम्म। तो इसलिए जगलतु हो गया। यही फिर नियम बाकी चलते हैं, जगमतु जगमुहु, और बाकी धातु में भी इसी तरह से चलेगा। तो जगलतु, तो जगलऊ जगलतु जगलू इत्यादि। प्रभु जी इसका जैसे ग्लाई, ग्लाई टू बी perturbed, टू बी डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का क्या मतलब हुआ? क्लाइम बेसिकली हो गया आ, थकना। थक गिलानी। जैसे गिलानी। गिल्ट। ग्लानि, ग्लई का अर्थ हो गया थक जाना, या फिर किसी चीज में हानि होना, ह्रास होना, क्षय होना। देखिए इसमें, देखिए क्या क्या मीनिंग्स है। ये सब है। या फिर फील टायर्ड, बी एग्जॉस्टेड, फेड अवे, फेंट, ये सारा है ना। के। एग्जॉस्टेड, धर्म ग्लानि, मतलब व्हेन धर्म गेट्स एग्जॉस्टेड, जब धर्म धर्म। एक्सटिंक्शन की वर्ज पे आ जाते हैं, यू नो व्हेन रिलीजन इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, देन कृष्णा हैज टू कम। तो जब तक एक्सटिंक्शन की वर्ज पे नहीं आता तब तक भगवान नहीं होते प्रकट। भगवान को लगता है कि ठीक है चल रहा है, चलने दो। हम्म। तो इसलिए ग्लानि, एग्जॉस्ट जाना। जैसे अभी सिलेंडर सिलेंडर एग्जॉस्ट होने हो गए थे ना इंडिया में, युद्ध युद्ध के कारण, समथिंग लाइक दैट। तो सिलेंडर ग्लानि एंड प्रभु जी जो वो उसमें था, ग्लानिर भवति, उसका किस शब्द, कैसे वो प्रयोग किया था उन्होंने, ग्लानिर? आई थिंक नीज थी देयर, टी फ्रॉम कृदंत। वही है, देखिए ग्लानि, देखिए एग्जॉशन। डिक्लाइन, उन्होंने डिक्लाइन लिखा। राइट, डिक्लाइन हाँ। डिक्रीज भी अर्थ है, देखिए। एक मतलब देखिए संस्कृत में क्या है ना, हम्म। लिटरल मीनिंग से नहीं चलते हैं। शब्दों का लिटरल मीनिंग नहीं देखा जाता। संस्कृत में क्या है, उसका एक भाव पकड़ा जाता है, उस शब्द का एसेंस पकड़ा जाता है, और उसके हिसाब से उनके प्रयोग होते हैं। वैसे प्रभु जी ग्लानी ही कैसे शब्द आया? ये ग्लई धातु है। और एक सेकंड में दूसरा वो लेके आता हूँ डिक्शनरी, एक सेकंड। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ग्लानि ग्लानि ग्लानि। इसमें डिक्शनरी में लिखा है ग्लई धातु है, धातु तो यही है। और एक नी प्रत्यय है, उणादि प्रत्यय नी, कुछ अलग एक प्रत्यय है नी। तो नादि उससे कम्सेन फिर अख्यात। ग्लानी होगी। हाँ। नादि कम्सेन अख्यात। नो, कृदंत आई बिलीव। वो उणादि एक कृदंत में सेक्शन आता है। तो वहां से नी उप, सॉरी सफिक्स है। और फिर चतुर्विहंता नाम आरामांत पाठो शिवे, उस सूत्र से अई का आ बन गया, तो ग्लई का बन गया ग्ला, तो ग्लानी। तो इस प्रकार से ग्लानी। हम्म। तो वैसे प्रभु जगलत जी उनादि प्रत्यय क्या कौन से होते हैं? बेसिकली कृदंत में ही होते हैं। जैसे कृदंत के प्रत्यय हैं त्वा, ल्यप, हम्म। तुमुन। तो उसी तरह से ये उणादि में कुछ प्रत्यय, कुछ जो थोड़े से डिफरेंट है, ज्यादा कॉमन नहीं है, कुछ स्पेसिफिक प्रत्यय हैं, तो उनको उणादि प्रत्यय बोले। कृदंत का ही भाग है। आई थिंक आलू, आलू भी उणादि प्रत्यय है। आई हैव टू चेक। आलू, वो खाने वाला आलू नहीं। आलू देन। आलू जैसे कृपालु, दयालु, है ना, दयालु, कृपालु। इट्स सिफिक्स। या इट इज अ सफिक्स आलू।
अच्छा, आप आलू, दयालु, ओके। देखो ना, कृपालु है, दयालु है, और कोई शब्द बताइए जिसमें आलू है। आलू, आ, कृपा, आलू, भालू। नो नो, दैट्स अ हिंदी वर्ड। आलू, तो आलू भी एक प्रत्यय है, बट वेदर इट इज उणादि और नॉट, विल हैव टू चेक, बट स्टिल। तो ऐसे कई सारे प्रत्यय हैं। ठीक है। अनादि मतलब आलू का फिर ये मतलब है वन हु इज डैश। यहाँ पे डिक्शनरी में लिखा है आलू मीन्स युक्त, वन हु इज इक्विप्ड विद दया, वन हु इज इक्विप्ड विद कृपा। इक्विप्ड, युक्त, युक्त अर्थ में। युक्त। दया युक्त दयालु, कृपा युक्त कृपालु। तो ये कृदंत बहुत मजेदार है, कृदंत फन है बहुत। मैंने इसलिए आपको आई थिंक वो पीडीएफ दी थी कृदंत वाली। यस प्रभु जी। पर आपने स्टार्ट किया है नहीं, पता नहीं। नहीं प्रभु जी, मैंने स्टार्ट किया वो उसका मतलब वो कृत्या वाला किया है। सारा तो नहीं आया किया समझ में, है। समझ में आया। हाँ प्रभु जी, बड़ी अच्छी तरह जैसे गेय, गेय वाला, हाँ, इट शुड बी नोन, ये चीजें राइट। पता लगे। उन पांचों जो प्रत्यय हैं, जो कृत्य प्रत्यय हैं, यत क्यप न्यत तव्य अनीय, उनका अर्थ एक ही है। सिर्फ वो अलग अलग प्रत्यय हैं, उनका सबका अर्थ है कि समथिंग विच इज टू बी डन। कोई चीज जो करने यस। योग्य है, करनी चाहिए, समथिंग विच शुड बी डन, विच मस्ट बी डन, और विच कैन बी डन। तो वही अर्थ है, बस वो प्रत्यय अलग अलग है। जैसे कर्तव्य, करणीय, कार्य, कृत्य, ये सब एक ही अर्थ के वाले हैं, सिर्फ प्रत्यय बदल गए। प्रभु जी उसमें एक चीज पूछनी थी, मुझे था बस एक डाउट कि जो जैसे तुमुन, अनियर वगैरह है प्रत्यय, तो दे डिक्लाइन लाइक द नामास और तो आरते अव्यय। उसमें कुछ प्रत्यय लगने से तो अव्यय बन जाते हैं, जैसे तुम उन, त्वा, ये सब लगने से तो वो अव्यय शब्द बन जाते हैं। जैसे हम्म, कृत्वा, कर्तुम, ये सब अव्यय बन गए। बिल्कुल। किंतु बाकी जो शब्द है, जैसे कृत्य प्रत्यय हैं, यत के अपने तव्य अनीय, ये सारे इनके रूप चलेंगे। पर ये एज अ विशेषण काम करेंगे ना, कि क्योंकि हाँ, वैसे विशेषण के रूप में कभी भी ठीक है, विशेषण कह सकते हैं एक दृष्टिकोण से, कि विशेषण मतलब कह जैसे सकते हैं। अगर इफ आई मीन कि जैसे करणीयम, करणीयम, करणीयम 2.1 हुआ ना। हाँ, जैसे मान लो सर्वई जनई भक्ति ही करणीया। भक्ति करणीयाः। करणीया स्त्रीलिंग हो गया ना, भक्ति स्त्रीलिंग है, तो करणीया। सो सर्वई जनई भक्ति करणीया, भक्ति शुड बी परफॉर्म, शुड बी डन बाय ऑल men, लेट्स से ऑल द पीपल। तो इस प्रकार से ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। पर किंतु बात यह है कि भक्ति शब्द भी कृदंत है। जो भक्ति शब्द है वो भी कृदंत है, तीन प्रत्यय लगे। अब आगे आगे बढ़ेंगे तो उसमें तीन प्रत्यय भी है। तो सभी शब्द विशेषण है, ऐसा कहना शायद से अतिशयोक्ति होगी। ओके सभी ठीक। शब्द विशेषण नहीं है, कुछ हो सकते हैं, कुछ हैं एक्सेप्टेड। ओके ठीक। मतलब जैसे करणीय, करणीये कृष्ण भक्तिम, करणी मतलब नहीं, करणीये कृष्ण भक्त, आप बोलना बोलना क्या चाहते हैं। मतलब आई मीन टू से कि जैसे मान लो इफ आई हैव टू ट्रांसलेट करणीयम, करणीयम शुड बी डन, बट अगर ये डिक्लाइन होता तो अगर ये सेवेंथ विभक्ति में आता तो इसका क्या मतलब होगा, कि मतलब करणीय, ये 7.1 का उसका क्या हुआ, इन शुड बी डन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनिय लगने से अर्थ हुआ इट शुड बी डन, समथिंग शुड बी डन। जी। अब आप कौन सी विभक्ति लगा रहे हैं, उसका अर्थ अलग से जुड़ जाएगा। तो आपको सप्तमी का प्रयोग देखना है ना। हम्म,
चलो सप्तमी का प्रयोग सोचते हैं। अम, हाँ ठीक है, इस तरह से। हाँ, सर्वैः जनैः करणी, लेट्स से सर्वैः जनैः करणीयां भक्त्यां रमेशस्य मनः न आसज्जते। अगेन, करणीय। सर्वैः जनैः करणीयां भक्त्यां रमेशस्य मनः न आसज्जते। इट मीन्स द माइंड ऑफ रमेश, रमेश का मन सभी के द्वारा करने योग्य भक्ति में नहीं लग रहा है। प्रभु जी एक बारी व्हाइट बोर्ड के द्वारा हो सकता है? आप क्या राइट, आई राइट। आपको वो सेंटेंस फॉर्म करना पड़ेगा ना, फिर आप जो भी विभक्ति लगाना चाहते हैं, जैसे भी उसको देखना चाहते हैं, तो इसको देखिए। तो सर्वैः करणी करणी अनीय अनिया अनियाम। राधा शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होता है? राधायाम। राधायाम। राधायाम, तो इसका करणीय करणीयायाम, सर्वैः करणीयायाम भक्त्याम रमेशस्य मनः न आसज्जते। रमेश का मन सभी द्वारा करने योग्य भक्ति में नहीं लग रहा है। आसज्जते सर्वैः करणीयायां भक्त्यां रमेशस्य मनना आसज्जते। आसज्जते मीन्स कम्स। नहीं लग रहा है, नहीं आसज्जते मतलब आसक्त, उसका मन भक्ति में आसक्त नहीं हो रहा है, या मन नहीं लग रहा है। सर्वाइव by all which should be done in bhakti of Ramesh, नहीं नहीं ऐसे, हाँ ठीक है, इन भक्ति। in ओके। bhakti of Ramesh manah, mind of Ramesh mind, not attaching, न आसज्जते, या नॉट अटैच्ड। not attached। तो ये ठीक ट्रांसलेशन तो या इस तरह से, क्या शुद्धि पूर्ण? हाँ हाँ ठीक है, तो इस तरह से ये सप्तमी होगी जैसे आप बोल रहे थे। which should be done in bhakti एज एडजेक्टिव सर, काम किएगी। हाँ यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है। संस्कृत भारती वाले गाते हैं ना, लोकहितम सदा करणीयम। सुना है उन्हें? लोकहित, उनका उनके सारे कई सारे संस्कृत के गीत हैं। सो वन ऑफ द गीत इज लोक कृतम मम लोकहित, करण। लोकहितम मम करणीयम, राइट। Yes, सुना है सुना है। तो अब उसमें लोकहितम मम करणीयम। तो वहां पे भी विशेषण है कि मम लोकहितम करणीयम। तो इस तरह से। एंड प्रभु जी बट सज्ज धातु गतौ इति अर्थः, किंतु तर्हि वयम आसक्तः आ इति आ अर्थे। आंग पूर्वक आ सज्जते, आ लगने से उसका अर्थ थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है, आसक्त अर्थ में हो जाता है। प्रभु जी लाइक गम धातु यदा आ उपसर्ग इति तत्र, युक्तम। आमां तत्र आ योगेन भिन्नः अर्थः, किन्तु अत्र आयोगेन किञ्चित् भिन्नम् अर्थम्। आसज्जते, आसक्त इति अर्थे। तर्हि तर्हि कथं वयम् अस्माभिः अ, एतानि एतानि उपेन्द्राणि अर्थानि या बोधव्यम्। कोश, कोशेन, कः कोश? शब्दकोश, डिक्शनरीज। ओके। आमां डिक्शनरी एव केवलम्। कः डिक्शनरी?
फिजिकल। किमपि संस्कृत डिक्शनरी आदिकं मम पार्श्वे तु मोन्यर् विलियम्स् आप्टे इत्यादि अ, अस्ति। कल्पद्रुम वाचस्पत्यम्। वामन आपटे। आमाम। वो फिजिकल आप कौन सा यूज करते हैं या बस ऑनलाइन? मैं ऑफलाइन ही यूज करता हूँ, ऑनलाइन यूज नहीं करता। ऑफलाइन में प्रभु जी कौन सा, यदि हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? नहीं नहीं, वैसे फिजिकल बुक यूज नहीं करता हूँ मैं, डिजिटली है बट ऑफलाइन। अच्छा, ठीक है। इंटरनेट इंटरनेट की जरूरत नहीं होती उसमें। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड फाइल्स अर्लियर इन द ग्रुप, फ्यू फाइल्स। यस। तो वही सब तब यूज मैं, करता हूँ मैं तो। हाँ, नहीं प्रभु जी, नहीं। ठीक है। तो यहीं पर रुकते हैं, विल स्टॉप हियर विद द ग्रामर पार्ट, क्योंकि कई सारे सूत्र हम लेकर कर रहे हैं। विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। भागवतस्य दशमस्कन्धस्य प्रथम अध्यायात् अ, 48। का श्लोक संख्या अष्टचत्वारिंशत्। अस्तु। आम्। वसुदेव उवाच। मृत्युर्बुद्धिमता पोह्यो यावद् बुद्धिबलोदयम् यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः। हम्म। मृत्यु बुद्धिमता अपोह्यः, अपऊय्यः, अपोह्यः यावत् बुद्धिबल उदयम् यदि असौ न निवर्तेत न अपराधः अस्ति देहिनः। अन्वय। प्रभु जी, बुद्धिमता। प्रभु जी इन वर्ड इफ भवान, वर्ड किम? लिखित लिखितवान। अत्र लिखितमेव। अन्वय अन्वित अन्वय। अन्वय। अस्तु। श्रुत्वा एव भवान् कर्तुं शक्नोति इति मन्ये अहम्। हम प्रभु जी, न यदि शक्नोति। यदि यदि प्रभु जी, अहम कलियुग जीवे जीवम अस्मि। लेखनमिति मम कृते न क्लिष्टं, किन्तु जैसे समय, जैसे आपको ठीक लगे। मोर टाइम विल बी स्पेंट। तो हम ज्यादा श्लोक नहीं कर पाएंगे, दैट्स ऑल। जैसे आपको ठीक लगे प्रभु जी, सुन लेंगे। आप साथ में अपना भागवत रखिए ना। रखा है प्रभु जी, रखा है। अपना भागवत साथ में रखिए, उसको नंबरिंग्स लिखते रहिए, 1 2 3। हम तो ऐसे ही करते थे, हमारे गुरुजी तो ऐसे भी नहीं सिखाते थे, तो फटफट बोल के आगे निकल जाते थे। आई मीन उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया और उनकी वजह से ये है, पर उनका थोड़ी स्पीड ज्यादा थी। 1 1.5 साल बाद तो मुझे समझ में आने लगा कि चल क्या रहा है। अच्छा, थोड़ी ट्रांसलेशन भी नहीं होती थी उसका? नहीं नहीं, अच्छा। ट्रांसलेशन इसलिए तो 1 1.5 साल बाद मुझे समझ में आने लगा कि चल क्या रहा है। अच्छा। और मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया, मैंने कहा कि ठीक है, एटलीस्ट जाऊंगा, कुछ तो सीखूंगा। ठीक है। बुद्धिमता यावत् बुद्धि बल उदयम मृत्यु अपोह्यः। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके द्वारा बुद्धिमता, बुद्धिमता इति का विभक्ति? प्रभु, हम्म। प्रभुद्वय। बुद्धिमता इति का विभक्ति? तृतीय। या विभक्त्याम एक किं वचन। वचनम्? एकवचने। प्रातिपदिकं किम् अस्ति? आ, बुद्धिमत। बुद्धिमत्। कृत कृदंत प्रत्यय मतु। आम् आम्, बुद्धिमत्। बुद्धिमता
बुद्धिमान के द्वारा यावत बुद्धि बलोदयम, as far as he has buddhi, intelligence and strength, as far as he possesses buddhi and bala, to that extent, or to that extent, he should, intelligent man should, mrityu apohya, he should try to, uh, apohya is like delay, avoid, he should try to delay or avoid death. तो जितना सामर्थ्य हो बुद्धि विवेक से, शक्ति से, तब तक एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी मृत्यु या मृत्यु को टालना चाहिए। बेसिकली अपोह्य मतलब टालना चाहिए, ना वो टाल सके। फिर कह रहे हैं, तो अपोह्य जो शब्द है इसमें ये इंटरेस्टिंग शब्द है। अप, अप इज अ प्रीफिक्स, देन yes. ऊह्य, अप वह धातु, एंड यत के अपन्यत, यत, यथ कृदंत। हाँ कृदंत, कृत्य, ऊह्य। तो वह का बन जाता है ऊ, संकर्षण, और अपोह्य हो जाता है अपोह्य। अर्थात प्रभु जी। तो बेसिकली वह का मतलब होता है टू कैरी समवन, किसी को कैरी करना, किसी को उठाना। जैसे विवाह है ना, विवाह वह धातु से आता है, तो किसी की जिम्मेदारी उठाना बेसिकली। तो वही वह का अर्थ है। तो वह का अर्थ हुआ कि किसी को कैरी करना, उठाना। और अप लगने से विपरीत अर्थ हो गया, किसी को उल्टी दिशा में उठाना या भेजना। अप, अपगत बोलते हैं ना, अपगत, उल्टी दिशा में जाना। अप मतलब उल्टा हो गया, अप सिद्धांत, विपरीत अर्थ में। तो अप वह का अर्थ हो गया कि विपरीत दिशा में भेजना, टू कैरी समथिंग अपार्ट फ्रॉम अस। कृत्य। तो ये अर्थ हो गया इसमें। तो मृत्यु अपोह्य। अच्छा, फिर लिखा है कि यदि असौ न निवर्तित, अगर मान लीजिए कि ऐसा जो व्यक्ति है, या फिर अगर मान लीजिए प्रयास करने के बाद भी मृत्यु नहीं रुकी या ना टली, न निवर्तित, तब देहि न अपराध न अस्ति, तब एक जीवात्मा को, एक मनुष्य को कोई अपराध नहीं लगेगा। इसका अर्थ है कि अगर क्षमता है फिर भी मृत्यु को नहीं टाला तो उसमें अपराध लगेगा। और अगर प्रयास करने के बाद भी यदि असौ मृत्यु न निवर्तित, तरही देहि न किमपि अपराधम नास्ति, तब फिर देही जीवात्मा का कोई अपराध उसको नहीं लगेगा। ये भाव है। दैट्स द अन्वय। अस्तु। प्रभु जी, अपोह में वह ऊ कैसे बन गया? हाँ, ये आगे जैसे गोविंद और कृष्णेंद्र हमने किए हैं, जी। तो आगे संज्ञा आएगी, संकर्षण संज्ञा। ओके। तो संकर्षण संज्ञा में ये व का ऊ बन जाता है, वो आगे आएगा। दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग। उसी से उवाच और ये सब बनते हैं, ऊ, ये सब जो है ना, वो उसी से ही बनते हैं। प्रभु जी, if one tries to directly go from Akhyat to Kridanta, will it hamper him? नहीं, कारक छूटेगा। कारक में तो यूजेज है कि कहाँ क्या यूज करना है बेसिकली। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। और संस्कृत क्या है, संस्कृत एक्चुअली बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है। ये पूरा स्टूडेंट के ऊपर है कि स्टूडेंट कैसे पिक करता है, कैसे इसको समझता है। अब पाणिनि का देखो, पाणिनि का प्रेजेंटेशन काफी अलग है, जी। हरिनामामृत का प्रेजेंटेशन काफी अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिन्होंने बुक कंपाइल की है, वो गलत है। नहीं, स्टूडेंट्स बहुत तरीके के हैं। तो जिनको जैसे जैसे लगता है कि हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा लोगों तक आउटरीच होगी, तो बस उतना ही है। आप कुछ भी कभी भी पढ़ सकते हैं, इसलिए आई डोंट काइंड ऑफ बाउंड। आप समास भी पढ़ो, आप कृदंत भी पढ़ो, आप जितना बटोर सकते हो बटोर लो, इधर उधर से, वीडियो से, पीडीएफ से,
क्योंकि आप जितना सीखोगे उतना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता जाएगा, और जब हम हरिनामामृत में उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको फटफट वो सब क्लियर हो जाएगा। हम्म, तो आप पढ़ो, जितना आपको पढ़ना आप पढ़ो, इसमें कोई रुकावट नहीं है। बस हाँ, आप अपने आप को ज्यादा ओवरवेल मत कर लेना ओवर इन्फॉर्मेशन से। दैट्स माई ओनली कंसर्न। होता है कि हाँ बहुत कुछ पढ़ लिया, फिर एक मोमेंट पे हैक हो जाता है माइंड, कि अरे हम्म, यार मैं तो हैंग हो गया। होता है ना, ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो बस उसी से सेफ गार्ड रहना है, उससे थोड़ा बच के रहना है। अदरवाइज आई थिंक हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो सिर्फ ये क्लास टीचिंग से भी नहीं होगा। हम्म, तो एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा। तो एक्सप्लोर करिए, और एक्सप्लोर आपको कुछ नहीं करना है, आप बस अपना बुक उठाइए, ग्रंथ उठाइए। और मैंने भी आपको जैसे कृदंत मैंने खुद ही दिया, आपने मांगा थोड़ी, तो आप कृदंत पढ़ लो। अब मान लो आपका कृदंत अगर हो जाए तो मुझे बोलो कि प्रभु कृदंत हो गया, कुछ और है क्या, तो मैं आपको समास दे दूंगा, उसका मटेरियल दे दूंगा, आपको कुछ वीडियो वीडियो की लिंक भी दे दूंगा, आप वो पढ़ लो। हाँ फिर वो भी हो जाए, आ जाओ। तो हमारा ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, तो आप पक्के हो जाओगे। मतलब थोड़ा और क्विकली आपके शास्त्र जल्दी से आप अप्रोच कर पाओगे, शास्त्र को, टीकाओं को, श्लोकों को। और ऑफिशियली हमारा हरिनामामृत तो चल ही रहा है। हम्म, जी। तो आपके समय के ऊपर है, और आपके और एक्सप्लोर करने के नेचर के ऊपर है। आई डोंट स्टॉप। हम रोक ही नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। हम्म, अभी वो प्रभु जी हैं, दैट ब्रह्मचारी प्रभु फ्रॉम फ्रांस, जो पढ़ने के लिए वृंदावन आए हैं। तो अब उनका देखो, कृदंत हो गया, उनका तद्दीत हो गया, जस्ट विद इन 1 मंथ। अच्छा, ओके, जल्दी जल्दी। हाँ, 1 महीने में उन्होंने नाउन्स शब्द रूप काफी याद, काफी सेट कर लिया उन्होंने। कृदंत पूरा कर लिया, तद्धित ऑलमोस्ट कर लिया, मोटा मोटा लाइक 80-90%। अब वो समास कर रहे हैं, समास उनका आधा लगभग हो गया। क्योंकि मैं उनको हरिनामामृत से नहीं पढ़ा रहा हूँ उनको, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, 3-4 महीने के लिए ही है इंडिया में। तो अब उनका समास आई थिंक एक हफ्ते में समथिंग में हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा वृंदावन में आए इसीलिए हैं। तो वो हम्म, पूरा लग के पढ़ रहे हैं बिल्कुल। अब उनका देखो समास भी हो जाएगा, मान लीजिए 10 दिन में, मान लीजिए मैक्सिमम। हम्म, उसके बाद उनका सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, एंड दैट वुड बी वर्ब्स, धातु। धातु होने के बाद मेरी तरफ से उनका हो गया। अब वो बस अपने आप को कल्टीवेट करते जाए, एंड दैट्स ऑल। तो हम्म, अभी मैं उनके साथ अन्वय थोड़ा स्टार्ट किए हम्म, सिंस लास्ट फ्यू सेशंस, कि भाई अब आप उन्हें सीख लिया, अब आओ इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं। तो अच्छा लगता है ना कि हाँ, और वो बहुत सीरियसली उसको ले भी रहे हैं, ऑल दो इज नॉन इंडियन। उसको वो समझ रहे हैं, वो इम्प्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वो कर पा रहे हैं, ही हैज दैट कैलिबर। तो खुशी होती है कि देखो वो कर पा रहे हैं। तो पर्पस वही है, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि आप तीनों भी कभी एक ऑफलाइन, अगले महीने या जून में आप तीनों आ जाइए। तो हम कुछ एक बढ़िया संस्कृत फुल टाइम रिट्रीट करते हैं, दिन में 10-12 घंटे, अलग अलग टॉपिक्स। जैसे कृदंत लिए तो कृदंत छाप देंगे, तद्धित लिए तो तद्धित छाप देंगे, समास है तो समास छाप देंगे, कि मोटा मोटा मतलब आपका 5 से 7 दिन में रेडी हो जाए एक अच्छा मतलब बेस। मतलब ऐसे कर देंगे, मतलब तद्दित वगैरह पकड़ लेंगे। हाँ हाँ, हरिनामामृत से मैं टच नहीं करवाऊंगा, मैं आपको अलग कंसेप्ट दूंगा, जैसे मैंने आपको कृदंत दिए। ठीक है। तो उससे आप 2 दिन में, 3 दिन में कर लोगे, 3-4 दिन में। तो एक हफ्ता, तो मैंने बोला था विष्णु, आपने थे लास्ट क्लास में। मैंने सुना था, रिकॉर्डिंग में सुना था मैंने। तो अगर आप चाहें तो एक ऑफलाइन आमने सामने भी कर सकते हैं, 5-6 दिन, 7 दिन। यस तो प्रभु। आपका धाम धामवास भी हो जाएगा आप दोनों का। हाँ, यस। मैं और जैनी ठाकुर तो यहीं रह रहे हैं। तो एक संस्कृत दिवस या संस्कृत सप्ताह कुछ भी हो जाएगा। यस बट आई प्रभु। थिंक उससे काफी और अच्छे पुश मिलेगा, क्योंकि आप तो करते हैं, पर प्रभु जी और जैनिता प्रभु का इनपुट मुझे ज्यादा आता नहीं है। कि वो क्या कर रहे हैं, क्या है, तो मुझे थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है। खुद से, कि पता नहीं मेरा पढ़ाया वो उनको समझ आ रहा है नहीं, उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या लेवल है। वो जब श्लोक देख रहे हैं तो उनको कितना समझ में आ रहा है। तो मेरा यही रहता है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है और कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो दैट्स माई फेलियर। तो तो आप बना लीजिए, देखिए। अच्छा प्रभु, एक बार महाराज जी के सर्वेंट का फोन है, जस्ट एक सेकंड। विष्णु सहस्त्र। मृत्यु, यदि यदि असौ मृत्यु न निवर्तित, अगर मृत्यु न टली तो, यू नो, देहिनः अपराध नास्ति। तो ये सिद्धांत है जिसके आधार पर वसुदेव इज ट्राइंग हिज हार्ड
कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, इसी सिद्धांत के बल पे। क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है कि अरे भाग्य है, अब जो होना है होने दो। यू नो, क्या मरना है तो मरने दो, ठीक है, वसुदेव वो भी एंगल ले सकते थे। किंतु ये सिद्धांत है कि नहीं, अगर विवेक है, बल है, तो प्रयास करना चाहिए। नहीं करते तो वो अपराध है, वो सही नहीं माना जाता। तो इस सिद्धांत के आधार पर ही वो प्रयास कर रहे हैं देवकी को बचाने के लिए। ठीक है, तो हम विल स्टॉप है फॉर टुडे। यस प्रभु। Prabhuji, like this is the shlok is in prose and poetry form. So पोइट्री, पोइट्री, नॉट poetry प्रोज। poetry form. So is it necessary to know Alankar Shastra along with this Vyakaran to decode the meaning, actual meaning of these? व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल मीनिंग? Means sometimes आपने जैसे कहा कई बार लिटरल ट्रांसलेशन नहीं चलता और शब्द भी इधर उधर होते हैं, वैसे तो समय के साथ पता लग जाता है, बट स्टिल वो कन्वर्सेशनल और जो टीका वाला है इट इज वेरी इजी टू, जैसे मैंने वो आपने कहा था तो श्रीधर स्वामी की भगवत गीता की संस्कृत पढ़ी, इट इज वे मोर इजी बिकॉज इट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न. आपका जो प्रश्न है अलंकार शास्त्र वगैरह जरूरी है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस विद माय सीनियर। क्योंकि विशेष रूप से जो मान लीजिए जो अ, रूप गोस्वामी वगैरह के जो ग्रंथ हैं, हम्म. विदग्ध माधव इत्यादि इत्यादि, गोपाल चंपू, ये सब, उनमें काफी प्रयोग है उन चीजों का। भागवतम वगैरह में फिर भी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ओके. कंपेरेटिवली। गीता भागवत में इतना नहीं है, हम टीकाओं से अच्छे से समझ में आते हैं। तो बात के लिए आई थिंक आई स्टिल डिस्कस विद माई टीचर, क्योंकि व्याकरण, अलंकार शास्त्र वगैरह एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाते हैं, व्याकरण एक अलग ही सेक्शन है। तो पर मेरा तो मानना ये है कि अगर हम मान लीजिए व्याकरण हमने अच्छे से पढ़ा है, हम्म. और हम टीका के आधार पर चलते हैं, जनरली हर बुक के टीका वगैरह है, एक्सप्लेनेशन हैं, उनके आधार पर अगर हम आगे बढ़ते हैं और किसी के अंडर में बढ़ते हैं, क्योंकि उन अर्थों को सही रूप से हमें समझ में कैसे आएगा, कोई समझाएगा तभी आएगा। तो धीरे धीरे वो चीजें खुल जाती हैं। ऑफ कोर्स अलंकार शास्त्र वगैरह आने चाहिए। अभी अलंकार में क्या है, देखिए कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे उपमा, यू जी. नो, सिमिलैरिटी, उपमा हो गई, रूपक हो गया, एव, इव, ये सब अलंकार के ही भाग हैं। तो ये सब चीजें हमें प्राय मिली जाती हैं टीकाओं वगैरह से, है ना, चीजें आ जाती हैं। पर फिर भी अगर हमारे पास ऑप्शन है तो पढ़ना चाहिए, व्हाई नॉट। व्याकरण के साथ या व्याकरण के बाद, आई थिंक व्याकरण के बाद, साथ में अगर है तो पढ़ सकते हैं, पर बाद में तो पढ़ ही सकते हैं अगर हमारे पास ऑप्शन है तो। ये मुझे भी थोड़ा एक्सप्लोर करना है इस टॉपिक में, टू बी फ्रैंक, क्योंकि हमारे जो गुरुजी थे, चर्चा हुई तो उन्होंने भी एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था, मतलब ये होता ना कि हाँ, कि चलो पढ़ेंगे या टाइप। तो इस पे थोड़ा और मुझे भी एक्सप्लोर करना है इन विषयों में। बट हाँ, व्याकरण एवर कर लेते हैं तो धीरे धीरे चीजें अपने आप खुलती रहती हैं। ऐसे तो प्रभु बहुत अनलिमिटेड अंधा कुआं है, बहुत गहरा है। वो तो है पर मुझे तो अच्छा. मुझे डर भी लगता है पर्सनली। प्रभु यार रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर दीजिए।